Assalamualaikum. Game H के new episodes के साथ we are here yet again, and this episode is sort of like specially focused towards Middle East, the prospects over there, and how to get into the Middle East. That includes certain jurisdictions. We have a very nice panel over here. So I'm Salman Mansoor. I'm currently in UK. Dr. Ali Sayed, who is in US, and this program was initially conceived by Dr. Zakir. He is currently a bit busy, so I was asked to moderate this session. So we have a very nice panel over here. Dr. Jazib Hassan, who is currently in Qatar Hamad Medical Corporation, working as a fellow in critical care. He is a graduate of Hamdard, and he graduated, I think, in 2010. And then we have our very nice Dr. Kazim Ali, who is an FCPS neurosurgeon, and he has also trained in Pakistan and has worked for an year or so in Pakistan. And after that, he has joined the Kuwait hospital, and he's working as a specialist over there at the minute. Then we have Dr. Muhammad Adil, who is also a Hamdard graduated from Hamdard in 2010, and he has completed his neurosurgery as well from three different hospitals. He has worked in Mayo Hospital, he has also worked in Jinnah Hospital, and some work in Hamdard University Hospital during his FCPS neurosurgery training. He's working in Jeddah at present, and he's working as an assistant consultant. Then we have Dr. Sana Junaid, who is also a graduate from the same batch, and she has some experience in Pakistan, and she has done some MCPS training over there. And after coming to Saudi, she has been working in the non-clinical and the clinical sector both. She has been successful in getting some specialist endocrinology post in Saudi Arabia in Suleiman Faki Hospital, and then she has some also non-clinical quality sort of posts as well, which she's doing, and she's going to tell you about it. She has a very big sort of very big and wide sort of experience. One of our panelists is not here at the minute. He's driving, but he would join us shortly. He's our other graduate from 2005 class, and he has been working in Dubai Health Authority, and he's a specialist working in emergency medicine department in Mohammed Rashid Hospital. He has extensive work in training in Afan University Hospital, and also working in Sharjah before he joined his current post. So he will shortly join us. So that is our panelist. Before starting, we will say Happy New Year to all of you. And we will start with Joseph, who is sitting in Qatar right now. He has to leave early, so that's why he has asked to be started from. So, Joseph, I will come to you. My question to you is for the graduates and the non-graduates who are still undergraduates. What advice would you give, and what's the Qatar medical licensing pathway, and what's the training prospect? जी अस्सलाम मंसूर भाई सलमान भाई I'm really thankful to Ali bhai especially who has arranged this meeting, and he is like guidance pathway for us. At least when I was in Hamdard, I used to call him and he always respond to me, and even now he has been graduated from Hamdard maybe 15 years ago, but still इतना ज़्यादा वो टाइम निकालते हैं, एंड इवन नाउ ये जो मीटिंग है उन्हीं की वजह से हो रही है. सो वी ऑल आर थैंकफुल टू हिम. सेकेंडली जो मुझे जो टॉपिक दिया गया है स्पेशली कतर के बारे में बताऊं कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. सो द अपॉर्चुनिटीज हियर, जितने भी लोग हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं
पाकिस्तान से स्पेशली, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज तकरीबन ना होने के बराबर हैं. लाइक FCPS हैं या MS हैं या MD हैं, दे डोंट वांट देम, क्योंकि ये छोटा सा कंट्री है, इट्स अराउंड 2.5 मिलियन पॉपुलेशन है. और एंड सेकेंडली द मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे डोंट लाइक, इनफैक्ट दे डोंट लाइक पाकिस्तानी डिग्रीज, स्पेशली FCPS को या MD MS को. देयर आर सम एक्सेप्शंस के लोग आते हैं, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये है कि दे कंसीडर पाकिस्तानी डिग्री इन टायर 3. सो अगर आप लाइसेंसिंग में जाएं, जैसे UAE के लाइसेंसिंग है, हाद है या DHA है, सो उधर टायर्स बने हुए, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3. सो टायर 3 को ये लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, दे डोंट टेक इट. और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये इनकी अपनी ग्रेजुएट्स जो रेजिडेंसी कर चुके होते हैं, इन्होंने उनको जॉब्स देनी होती हैं, उनको फेलोशिप्स देनी होती हैं, तो इनका काम क्लिनिकल सर्विसेज तकरीबन उनसे पूरी हो जाती हैं. सो द पीपल हु हैव डन FCPS और MD एंड MS, सो उनकी अपॉर्चुनिटीज बड़ी ही वीक हैं कतर के अंदर. So hardly there will be 1 or 2 people coming around in around couple of years maybe, वो भी अंदर से कोई लिंक्स हैं. तो सो मेरी जो टॉपिक होगा बात करने का वो यही होगा कि जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं या जो रिसेंटली ग्रेजुएट किए हैं MBBS से, वो कैसे रेजिडेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं. सो बेसिकली इनकी रेजिडेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम एक बड़ी ही स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम है. और जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड थिंग है वो ये है कि दे हैव ACGME इंटरनेशनल एक्रीडेशन. सो बेसिकली इट्स द सेम accreditation which the any residency training program have in US. चूँकि वो US के सॉइल पे नहीं है, it's outside the soil of US, so they say it international. But once you finish your ACGME international residency training, it is equally accredited by the states of US for the licensing. ठीक है, मैं अमेरिकन बोर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं लाइसेंसिंग की बात कर रहा हूँ. वो आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, मैं अभी इस पर बात नहीं करूँगा. खैर, जो मेन हाइलाइट्स हैं वो ये हैं कि रेजिडेंसी ट्रेनिंग चाहे आप किसी भी फील्ड में करें, दैट विल बी ऑलवेज बी स्ट्रक्चर्ड इन ब्लॉक पैटर्न. आपको पता होगा कि मेरे ये रोटेशंस हैं, मैंने ये रोटेशंस करनी है, फर्स्ट ईयर में ये करनी है, सेकंड ईयर में ये करनी है, थर्ड ईयर में ये करनी है, फोर्थ ईयर में ये करनी है. और उस हर रोटेशन के बाद आपकी असेसमेंट होती है, और वो असेसमेंट्स आपकी फाइल में लगी रहती हैं. और इसके अलावा बाई एनुअली यू विल बी असेस्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो बेसिकली इट्स अ वेरी गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम. और आपके मिनिमम केस नंबर्स होते हैं जो आपको करने होते हैं टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. अगर आप नहीं करोगे तो यू कैन नॉट गो टू द नेक्स्ट लेवल. अगर आप मिनिमम असेसमेंट्स पूरी नहीं करोगे, यू कैन नॉट गो टू द नेक्स्ट लेवल. सो ये मैं सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि इट्स अ वेल स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम. ठीक है, अच्छा, एक तो बात ये होगी. अब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना किस तरह है. सो इट्स ऑनलाइन, यू कैन गो एंड सर्च हमद मेडिकल रेजिडेंसी. अगर आप गूगल पे सर्च करो तो हमद वालों का पेज ओपन हो जाएगा. जो जनरल बातें उन्होंने लिखी हैं उसमें यही है कि आपको MBBS से ग्रेजुएट करके इंटर्नशिप एक साल होनी चाहिए आपके पास. You should have a license of your own country, or at least from where did you graduate. Okay. The other thing is that you should clear one international exam like USMLE Step 2 CK or IFOM or Canadian exam Part 1. You should have cleared that. इसके अलावा आपके पास इंग्लिश का टेस्ट होना चाहिए, IELTS, TOEFL या एक नया आया है OET. You should have उनके बैंड्स हैं. IELTS में ओवरऑल 7 चाहिए, TOEFL में I think 87 चाहिए, और OET में 350 चाहिए. And then you should have a 1 year of internship. और ये सारी चीज़ें उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं. लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ तो कुछ ऐसे है कि दे आर लुकिंग फॉर द अंडर ग्रेजुएट्स हु हैव डन देयर ग्रेजुएशन रिसेंटली, प्रेफरेबली विद इन 3 years. ठीक है, अगर आप 3 years के ब्रैकेट से बाहर हैं देन द मैचिंग विल बी वेरी डिफिकल्ट. और 5 years पे तो बैन है. ठीक है, इफ यू आर ओल्डर देन 5 years देन दे विल नॉट इवन शॉर्ट लिस्ट यू. इवन द मेडिकल एजुकेशन आप अप्लाई करोगे वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे. अच्छा, दे आर लुकिंग फॉर द फ्रेश ग्रेजुएट्स. द सेकेंडली, स्कोर्स मैटर्स अ लॉट. ठीक है, जब मैंने किया था तो उस वक्त इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था. जब मेरा हुआ था तो
फिर भी कंपटीशन कम था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और मिनिमम शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपको 250 स्कोर चाहिए ही चाहिए यूएसएमएल स्टेप 2 सीके एंड इट्स नॉट एन इजी वे टू गो। 250 स्कोर लेना अच्छा खासा मुश्किल होता है। इसी तरीके से आईफॉर्म में भी स्कोरिंग है, और मुझे नहीं पता कैनेडियन के बारे में आइदर पास और फेल और स्कोरिंग है या नहीं है, लेकिन आपको अच्छा स्कोर चाहिए शॉर्ट लिस्ट होने के लिए। जो दूसरी चीज़ वो लोग देखते हैं वो ये देखते हैं कि ये अगर आप रेडियोलॉजी करना चाहते हो, अगर आप एनेस्थीसिया करना चाहते हो या आप इंटरनल मेडिसिन करना चाहते हो, तो आपकी सीवी क्या उसके मुताबिक बनी हुई है। आइदर यू हैव डन सम वर्क इन दैट फील्ड, आइदर यू हैव डन सम रिसर्च, कोई आर्टिकल लिखा है आपने, क्या काम किया हुआ है उस फील्ड के मुतालिक। यू हैव टू जस्टिफाई व्हाई डू यू वांट टू डू दिस फील्ड। ठीक है, तो इवन अगर आपको इंटरव्यू भी आ जाती है तो पहला क्वेश्चन वो यही करेंगे, व्हाई एनेस्थीसिया, व्हाई रेडियोलॉजी। ठीक है, सो कम से कम 10 से 15 मिनट आपसे यही पूछते रहेंगे कि आपकी फील्ड ये आपने क्यों चूज की है। सो आपको उन्हें वाकई जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको कि हाँ भाई मैं, मेरे तो जिंदगी का मकसद ये है कि मैंने जिंदगी में इसके अलावा कुछ नहीं करना। जो तीसरी बड़ी चीज वो देख रहे होते हैं वो ये देख रहे होते हैं कि इस बंदे को हम अगर मैच करते हैं, ये बंदा हमारे पास आता है, हम इसे ट्रेन करते हैं, इसको अच्छी तनख्वाह देते हैं, सारा कुछ इसका करते हैं, कल क्या ये बंदा हमें छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू टेल देम कि भाई नहीं, मैं अगर आ रहा हूँ तो आई विल स्टे हियर इन कतर एंड आई विल सर्व द पीपल ऑफ कतर। ठीक है, सो ये तीन चीजें वो मेन देख रहे होते हैं। ठीक है, अब competitive, it's quite competitive now because यहाँ के जो अरेबिक कंट्रीज हैं, इजिप्ट है, जॉर्डन है, लेबनान है, उन लोगों के बड़े स्कोर्स आते हैं और वो लोग बड़े भारी मिकदार में अप्लाई करते हैं। तकरीबन जितने भी उनके ग्रेजुएट्स हैं जो यूएसएमएल करने जाते हैं वो इधर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और वो यहाँ पे मैच होते हैं, उनमें से वो फिल्टर यही लगाते हैं कि कौन सा बंदा हमारे पास रुकेगा और कौन सा बंदा हमें छोड़कर आगे चला जाएगा। ठीक है, सो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये तीन चीजें जहन में रखें कि आप जल्दी एमबीबीएस के बाद जल्दी तौर पर अपना इंटरनेशनल एग्जाम निकालो और अप्लाई करो। और दूसरा, आप पहले से माइंडसेट तैयार रखो कि मैंने इस फील्ड में अप्लाई करना है, तो आपकी सीवी बोलनी चाहिए कि ये बंदा वाकई इस फील्ड में आना चाहता है। और तीसरा, आपने ये जस्टिफाई करना है कि आप कहीं इनको छोड़कर अमेरिका नहीं जाओगे। स्पेशली इनको डर यही होता है कि अमेरिका निकल जाएंगे, क्योंकि ये लोग काफी हाई स्कोरर्स वालों को पहले मैच कर लेते हैं और वो या रेजिडेंसी के दौरान निकल जाते हैं या रेजिडेंसी के बाद में निकल जाते हैं। ठीक है, तो आपको इनको ये यकीन दिलाना पड़ता है इंटरव्यू के अंदर कि भाई मैं अगर यहाँ पे मैच होऊंगा, सो आई विल फिनिश माई रेजिडेंसी एंड आई विल फिनिश माई फेलोशिप एंड आई विल सर्व दिस कंट्री। That's very good. जाज़िब, बेसिकली ये आपने खुद ही आंसर कर दिया क्वेश्चन। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जिस टाइम हम ये हमद का इंट्रोड्यूस हुआ था, आई रिमेम्बर कि आई वाज, आई थिंक, डूइंग माय रेजिडेंसी माय सेल्फ समवेयर बैक देयर, और उस वक्त भी यूएसएमएल में जो लोग मैच नहीं होते थे, दे यूज्ड टू प्रेफर कि अब हम कोई अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढें, तो दे यूज्ड टू अप्लाई फॉर दिस पाथवे। तो और फिर मेरे ख्याल में दे यूज्ड टू फॉल आउट अगर उनका फिर आगे मैच हो जाता था टू यूएस। तो अभी फ्रॉम अ स्टैटिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कोई इस तरह के स्टैट्स हैं कि इतने आईएमजीज अप्लाई करते हैं और इतने मैच होते हैं, टू जस्ट हैव अ रियलिस्टिक पिक्चर के मैचिंग परसेंटेज क्या है आईएमजीज के अंदर? देखिए, मुझे एप्लीकेशन का तो नहीं पता, बट व्हाट आई कैन टेल यू इज दैट जो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं वो 1:1 कंपटीशन होता है। यानी कि अगर 200 लोगों को इंटरव्यू देंगे तो 100 सीट्स होंगी। जैसे मेरे एनेस्थीसिया के अंदर मुझे अच्छी तरह पता है कि हमारे पास 8 सीट्स होती हैं, तकरीबन 16 से 20 लोगों को इंटरव्यू भेजा जाता है। 16 से। तो इसी तरह से मेडिसिन में 50 to 55 सीट्स होती हैं, तो तकरीबन 120 लोगों को इंटरव्यू भेजा जाता है। सो इफ यू गेट एन इंटरव्यू, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल मैच। सही। Then 1:1 competition होता है। सही सही। Okay, that was very good, and I think if there is no questions from the audience, The other thing is that I will leave my number. I have my number on WhatsApp, and you can anytime anybody can message me, or even on Facebook they can message me. Any junior they want help, कोई पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अभी स्पेशलिटी वाइज इसको डिस्क्राइब नहीं किया, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे जैसे जैसे लोग इसको देखेंगे। सो यू कैन आस्क एट एनी टाइम, आई विल बी हेयर। और दूसरा मैं ये बता दूं कि सब जो पॉजिटिव थिंग्स हैं यहाँ की वो यही हैं कि इफ़ दे हैव ट्रेन्ड यू, दे वांट टू कीप यू हेयर। ये आपको फेलोशिप देंगे, ये आपको कंसल्टेंट बनाएंगे, एंड दे नेवर वांट टू लूज यू।
ठीक है, आप खुद जाना चाहो तो जाना चाहो। अगर आप जाना भी चाहते हो, हमारे ज्यादातर लोगों को यही होता है कि यार मेरे पास पासपोर्ट नहीं आएगा। जो नेगेटिव साइड वो यही है कि यार मैं सारी जिंदगी यहाँ पे बैठा रहूंगा 60 साल तक, और फिर 60 साल के बाद यहाँ पे जो रिटायरमेंट एज है वो 70 ईयर्स है हमारे पास हमद में। तो 70 ईयर्स के बाद डॉक्टर्स को बाय बाय करते हैं ये लोग। राइट। तो 70 साल के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, दोबारा पाकिस्तान जाऊंगा, तो मेरे पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो लोगों को ये जो छोड़ने की वजह है वो यही है। हालांकि ये लोग अमेरिका से ज्यादा पैसे देते हैं, एक रेजिडेंट को तकरीबन $7,000 देते हैं तनख्वाह में, तकरीबन 25,000 रियाल तक ये लोग देते हैं। उसके बाद हाउसिंग देते हैं, उसके बाद आपको एनुअल टिकट्स देते हैं, आपको बच्चों की प्राइवेट की स्कूल की फीस देते हैं, ओवर टाइम आपको मिलता है, आपको बोनसेस मिलते हैं, आपको पैसे के एतबार से ये लोग फुल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन लोग फिर भी छोड़ के जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही होती है, लोगों को पासपोर्ट चाहिए, दे वांट पासपोर्ट। अब अगर मैंने यहाँ पे रेजिडेंसी ट्रेनिंग की है तो मैं अभी सीजर अब के लिए अप्लाई करूँ अगर यूके में, जो सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ स्पेशलिटी रजिस्ट्रेशन है, तो मैं उनके वो 14 पॉइंट्स देख रहा था, तो मेरे तो सारे के सारी वो असेसमेंट्स मौजूद हैं, मुझे सिर्फ अप्लाई करना है। एंड मे भी कुछ थोड़ी बहुत वो डेफिशिएंसीज निकाल दिया। मेरे काफी सीनियर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया एंड दे गॉट देयर असेसमेंट डन, और ऑलमोस्ट उनका जो कंपेरेबिलिटी आई थी तो वो ऑलमोस्ट उनकी कंपेरेबल था ऑस्ट्रेलिया के ACGME की वजह से। सो उन्हें सिर्फ 6 महीने और काम करना पड़ा था एंड दे वर एबल टू सिट फॉर द रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज एग्जाम्स। सो इस एतबार से ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। और देन आफ्टर द ट्रेनिंग यू सिट फॉर अरब बोर्ड। अरब बोर्ड अगर आप देखो तो मिडिल ईस्ट के अंदर टायर 2 में आता है। ठीक है, सो आप अगर यहाँ से ट्रेनिंग करके आप UAE जाओ या सऊदी जाओ, यू विल बी इन टायर 2 एंड यू कैन अप्लाई फॉर अ कंसल्टेंट पोजीशन। और अब तो अरब बोर्ड को PMC ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है। सो मेरी जो PMC बनी है उसमें अरब बोर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड डिग्री जस्ट लाइक FCPS। दैट्स वेरी गुड। और बेसिकली अरब बोर्ड, जैसे आप कतर में अपनी रेजिडेंसी कर लोगे तो यू आर फुली एलिजिबल विदाउट गिविंग एनी एग्जाम्स एक्सेट्रा टू वर्क इन एनी अदर मिडिल ईस्ट जुरिसडिक्शन। यस एग्जैक्टली, मैंने अभी एनेस्थीसिया कर लिया है एंड आई एम अरब बोर्ड इन एनेस्थीसिया एंड आई कैन गो एनीवेयर इन मिडिल ईस्ट। दैट्स वेरी गुड। एंड इन पाकिस्तान आल्सो। सो अभी जो नई PMC आई है उसने अरब बोर्ड को रिकॉग्नाइज किया है। ओके, सो आई डोंट थिंक दैट ऑडियंस के पास अभी कोई सवाल है, लेकिन रिकॉर्डिंग बाद में जाएगी ऊपर। तो फिर आई थिंक इफ यू आर यू डू यू वांना स्टे हियर और you wanted to go early? Actually, I am working in the night, so I have to go at 6 o'clock. Okay. So I was thinking to take a small nap before I will go and work in the night. All right. So we will say Allah Hafiz to you and stay so strong. much. And thank you, very kind of you to give your number, etc. to the audience. You can, in the thread mention your. Salman bhai, I think you have my number, so you can just That's put it fine. in the chat or mail. That's fine. Thank you, Jazir. Thank you. So much, Salman bhai. Thank you. Have a good day. Bye. Okay, so that was a very interesting talk by Jazib, and he's been very kind. अब इस कतर से हम जाएंगे कुवैत की तरफ। तो कुवैत में हमारे पास हैं काजिम, and Kazim, the question to you also is what are the prospects in Kuwait and how did you come over there? और ट्रेनिंग के prospects थोड़े से बता दें और financial prospects बता दें और थोड़ा सा गाइड कर दें undergraduates और postgraduates दोनों को, and how feasible it is for undergrads or postgrads, whatever the Kuwait Health Authority pathway is. Kazim. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would say it's an honor to be part of this platform where I can guide my colleagues and my juniors. Kuwait is a small country which is very developed with all the facilities. इसमें पेरिफेरी का कॉन्सेप्ट बहुत कम हो जाता है। जैसे आप लाहौर में काम कर रहे हैं वैसे हर चीज इंटरकनेक्टेड है। तो जो इसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज में हम हॉस्पिटल्स को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लिनिक्स होते हैं, उसके बाद इनके पब्लिक टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, और थर्ड कैटेगरी में हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रखेंगे। लेकिन जब भी आपने यहाँ पे अप्लाई करना है तो जो आपका मेडिकल लाइसेंसिंग होगी, आपको जो वैल्यूएट करेंगे, यू हैव टू गो थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत। यहाँ पे अब जो पोस्ट हैं और उनकी जो पेज हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे जो पोस्ट हैं वो इस तरह के असिस्टेंट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, सीनियर रजिस्ट्रार, स्पेशलिस्ट, एंड if you have done some fellowship and you have some other degrees from America or UK, then you can come here and work on special contract as consultants. Registrar तक आपके पास कोई भी डिग्री जैसा FCPS है
इट इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो इफ यू वांट टू वर्क एज सीनियर रजिस्ट्रार देन यू नीड टू हैव सीनियर रजिस्ट्रार एंड अबव, you need to have a degree which is like FCPS, MS, MD, whatever, as in Pakistan. और जो इनकी पेज हैं, जो रजिस्ट्रार है उसने अगर MCPS किया हुआ है तो वो भी एज रजिस्ट्रार काम कर सकता है। और रजिस्ट्रार की जो पे है वो ऑलमोस्ट 1500 क्वेटी दिनार्स ऑलमोस्ट है। और जो सीनियर रजिस्ट्रार की पे है वो ऑलमोस्ट 1900 टू 2000 के बीच में वेरी करती है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, 1900 टू 2000 क्वेटी दिनार्स। और जो स्पेशलिस्ट की पे है यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 2400 प्लस पे चली जाती है। और अगर इफ यू कम एज ऑन अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट तो वो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एंड योर फेलोशिप एंड डिग्री हायर यू एज कंसल्टेंट, और उसकी पे फिर काफी अच्छी चली जाती है। जैसे यहाँ पे आप कुवैती अगर नेशनल है, जैसे वो कंसल्टेंट काम करते हैं तो उस तरह की पेज हो जाती है फिर आपकी। बट फॉर दैट यू नीड टू हैव सम लाइक डिग्री फ्रॉम यूके और अमेरिका। तो एक तो ये कि ये प्लेस अभी ओपन है जिसके बारे में इतना पता नहीं है, जिस तरह यूएई के बारे में, सऊदीया के बारे में और बाकी जगहों के बारे में। तो यहाँ पे अगर आपने MBBS किया है और आपका फॉर से अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, वैसे आपने कोई एग्जाम नहीं क्लियर किया, स्टिल यू कैन कम हियर एज GPs। तो GP की यहाँ पे GP क्लिनिक में आपको अच्छी पोस्ट मिल जाती है और वो बड़ी इजी जॉब है कंपैरेटिवली, और उसकी भी पे अराउंड 1200 तक होती है। वो आपको वो जो 350 क्वेती दिनार जो कॉल्स का अलाउंस है वो कट जाता है, क्योंकि यू आर नॉट वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, यू डोंट हैव एनी कॉल्स। सो अगर यहाँ पे अगर मियाँ बीवी ने अप्लाई किया है तो एज अ कपल आप अपने स्पाउस तो वो एज अ GP ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो ये भी बड़ा अच्छा हो जाता है। और दूसरा ये कि नाउ वी वांट टू नो हाउ टू अप्लाई इन कुवैत, दिस इज इम्पोर्टेंट। एट द मोमेंट कुवैत गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट का आपस में इन्होंने साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट के, हमें वी नीड डॉक्टर्स, तो हमें कुवैत में आप डॉक्टर्स प्रोवाइड करें। तो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन हमारा एक इदारा है पाकिस्तान का, जो गवर्नमेंट का एक इदारा है, जो कि इसमें अगर इसके यही एक वाहिद चैनल है एट द मोमेंट जिसके थ्रू आप ऑनलाइन CV फिल करेंगे, और ये जैसी पोस्ट आती हैं ये उस CV में से शॉर्टलिस्ट करते हैं बंदे, और यू कैन हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क ओवर हियर। ये सब लोग उसमें शामिल हो जाते हैं जिसने who are just MBBS और who have just done their post graduation degrees, तो सबके लिए इक्वल चांस मिल जाता है, उसी तरह फिर आपको पोस्ट मिल जाती है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे थ्रू कोलीग्स, इसको मैं बोलूंगा, दैट इज इफ आई एम वर्किंग हियर एंड माय कंसल्टेंट सेज दैट वी नीड मोर न्यूरोसर्जन्स, सो इफ यू नो एनी काइंडली गिव मी द CVs। सो अभी उन्होंने हमसे जिस तरह पूछा तो हमने कहा कि हम और लोग आना चाहते हैं तो आप कुछ CVs प्रोवाइड कर सकते हैं। वो फिर प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू वो भी आपको हायरिंग हो जाती है अगर वैकेंसीज हैं। इस तरह काफी ज्यादा हुआ है जब से हम यहाँ पे आए हैं। ENT में भी उन्होंने लोग मांगे तो कुलीग्स ने फिर जिनकी CVs थी उन्होंने उनको करवा लिया। तीसरा ये है कि आप डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अप्लाई करेंगे। वो फिर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स की साइट पे जाके उसको गूगल करें और उसी के मुताबिक आप उसको कर सकते हैं। अच्छा कासिम, और आपने इसके अंदर जो एक चीज बताई थी, क्योंकि आई एम जस्ट स्टॉपिंग यू, आई एम रियली सॉरी, लेकिन जो GPs का आपने बताया था वो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए इज इट अ फीजिबल पाथ? क्योंकि बाकी जो आप चीज बता रहे हो उसमें तो यू हैव टू हैव सम बेसिक एक्सपीरियंस, तो ये थोड़ा सा इस पे इलैबोरेट करना। बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूंगा कि जिन्होंने MBBS किया और आगे अभी कुछ नहीं किया हुआ, वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं GP जनरल प्रैक्टिशनर की पोस्ट पे। और अगर वंस यू आर हियर इन कुवैत, तो आप यहाँ पे एज ए GP काम कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आप देख लेते हैं, तो फिर आप यहाँ पे ट्रेनिंग पोस्ट हैं इनके पास, जो कि एक्सपर्ट्स के लिए कुछ फील्ड्स हैं जिसमें ये अलाउ करते हैं। कुवैत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, KIMS, उसमें जिस तरह ट्रेनिंग एनेस्थीसिया में इनको बहुत से बंदे चाहिए, तो ये एनेस्थीसिया में ट्रेनिंग दे रहते हैं एक्सपर्ट्स को। प्रेफरेबली टॉप मोस्ट कुवैतीज होते हैं, उसके बाद दूसरे अरब नेशनल्स आते हैं, और थर्ड पे कुवैतीज नो एक्सपर्ट्स आते हैं।
तो जो लोग उसमें फील्ड्स एक्सपर्ट को जिसमें प्रेफरेंस है उसमें एनेस्थीसिया, फैमिली मेडिसिन है, रेडियोलॉजी है आजकल, और इंटरनल मेडिसिन में भी ऑप्शंस हैं। लेकिन उसमें ये कि आप ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का पार्ट है, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, और आपको उस बेसिस पे वो अकोमोडेट कर लेंगे। और अच्छा, बाकी सारे हॉस्पिटल उनके टीचिंग हॉस्पिटल। ये जो आप ट्रेनिंग बता रहे हो, इसके ट्रेनिंग में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो वुड यू एंड अप हैविंग द अरब बोर्ड्स एज जाजिब वाज सेइंग, या आपको क्या चीज मिलेगी एट द एंड ऑफ द? जी बिल्कुल, यहाँ पे इनका कुवैती बोर्ड है, और विच इज ऑल्सो रिकग्नाइज्ड इन ऑल द गल्फ कंट्रीज। ये जीसीसी है बेसिकली। जीसीसी में जितने कंट्रीज आते हैं ये सारे एक दूसरे की डिग्रीज को एक्सेप्ट करते हैं, और अगर आपने अरब बोर्ड किया हो या कुवैती बोर्ड किया हो तो यू हैव गॉट द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज कंसल्टेंट इन एनी गल्फ कंट्री। ठीक है, तो आई डोंट थिंक देयर इज, we'll gonna come back to you again as well. अभी हम चलते हैं कुवैत से सऊदीया की तरफ। तो सऊदीया में हमारे दो पैनलिस्ट हैं, वन इज आदिल एंड द अदर वन इज डॉक्टर सना जुनैद। सो क्वेश्चन टू बोथ यू गाइस। फर्स्ट इसमें आदिल जवाब देते हैं, फिर सना सी पे टेक ऑन कर लें। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए आप क्या एडवाइस करोगे? सऊदीया में किस तरह के पाथवेज एग्जिस्ट कर रहे हैं? आई नो कि आप दोनों तो कुछ पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस लेके आए हो। एंड सेकेंडली, एनी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू सऊदीया क्या दे रहा है, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके? काइंडली आदिल। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। मैं एक स्लाइड शेयर करनी थी कि अगर मुझे इसमें आप कर लेने देते स्क्रीन शेयर करना। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑनर टॉकिंग ऑन आवर फोरम इन प्लैनेट हमदर्द, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सबको। इट इज क्वाइट इंफॉर्मेटिव एंड क्वाइट हेल्पिंग। अब रिगार्डिंग दी जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सऊदी अरेबिया, रिगार्डिंग ट्रेनिंग की यहाँ पे लिमिटेड हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है, मेनली ड्यू टू फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स. I have recently read the documents of Saudi Commission for Health Sciences, which is basically there the licensing, the accrediting as well as the training body. और उसके मुताबिक there is no directly no prohibition for any foreigner to get trained over here, but they have to pay for all the training. That it is a paid training throughout until and unless you find a sponsor जिनके पास आप काम कर रहे हो, who employ you and they are ready to sponsor you. अगर आपका स्पॉन्सर आपके साथ, अगर आपका डायरेक्ट सुपीरियर आपके साथ कोऑपरेटिव है तो दे कैन ट्रेन यू. फिर उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है डिपेंडिंग. फिर भी यहाँ पे जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनकी मेन जो प्रेफरेंस होती है, दीज आर द सऊदी सिटीजन. यहाँ पे ग्रेजुएशन के फौरन बाद अगर आए तो सिर्फ वही हमारे जो पाकिस्तान में रहते हुए सबसे बड़ा इशू होता है जो कि ट्रेनिंग की हमारी हर्डल बनती है, वो है फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स. यहाँ पे आते ही आपके फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं. यानी अगर वो ये इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन आपको एक रेजिडेंट की पोस्ट देते हैं, रेजिडेंट की पोस्ट की जो सैलरी है इट वेरीज फ्रॉम 5,000 टिल 11,000 रियाल, डिपेंडिंग अपॉन कि किस फील्ड में काम कर रहे हैं, किस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं. रेजिडेंट की पोस्ट जो कि है वो मेजर सिर्फ और सिर्फ कुछ प्राइवेट पॉलीक्लिनिक्स देती है या फिर एमओएच देता है. अगर एमओएच हमें रेजिडेंट की पोस्ट देगा तो इट विल गिव इन फार फ्लंग एरियाज. मेजर जो सिटीज है जद्दा, मक्का, मदीना, ताइफ, दमाम, रियाद, इनके अंदर रेजिडेंट की पोस्ट आर क्लोज्ड फॉर सऊदी सिटीजंस ओनली. ये हमें किसी भी पेरिफेरल हॉस्पिटल में, पेरिफेरल सिटी के अंदर ये डालेंगे. मगर यहाँ के पेरिफेरल हॉस्पिटल्स और पेरिफेरल सिटीज भी बहुत वेल इक्विप्ड होते हैं सिस्टम वाइज, और यानी वहाँ पे पेशेंट का वर्कलोड होता है, पेशेंट्स को रिसीव करना है और किसी मेजर सेंटर के अंदर रेफर कर देना है. मगर यहाँ पे मैं उसी को एडवाइस करूंगा पोस्ट ग्रेजुएशन के बगैर आने के लिए, जो कि मेंटली इतना साउंड हो कि और इतना विजनरी हो कि मैंने यहाँ पे इतना अरसा स्टे करना है, अपनी इतनी एक इनकम जनरेट कर लेनी है एंड मूव फॉरवर्ड फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी अदर कंट्री. सऊदीया का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो सिर्फ ये है कि यहाँ पे आप जिस पोस्ट में आ गए आप उसी पोस्ट में फॉर लाइफ रहेंगे. देयर इज नो करियर प्रोग्रेशन एज फार एज आई नो. अगर आप रेजिडेंट आ गए
तो ये आपको रेजिडेंट ही रखेंगे, चाहे आप यहाँ पे 30 इयर्स काम कर लो, चाहे आपका जो कंसल्टेंट है वो बिल्कुल आपसे जूनियर है, वो आपका हाउस ऑफिसर ही है, मगर वो आपका कंसल्टेंट बन गया क्योंकि उसके पास कहीं बाहर की डिग्री है। अब अगर आप एज एन असिस्टेंट कंसल्टेंट आ जाते हो तो आप एज एन असिस्टेंट, मैंने एक स्लाइड बनाई हुई थी, अगर आप मुझे स्क्रीन शेयर के वो ऑप्शन दे दें तो ना। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। आप शेयर करो अपनी तरफ से, मैंने ऑप्शन ओपन रखी हुई है। नहीं, यहाँ पे होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है। बहरहाल मैं उसे ग्रुप में वैसे डाल दूंगा, यानी जिसको Trying to let me see if there is any other thing, क्योंकि मेरे पास कोई पॉपअप आ नहीं रहा कि you want to share your screen. I have allowed it anyways for multiple participants. Check ठीक है। if you can see or not. Okay, I don't know. There's some problem, but हाँ जी, चले, हाँ जी, ये अब आ गया मेरे पास ना, ये आ गया बिल्कुल। हाँ जी, कैन यू सी माय स्लाइड? जी जी जी, I can see your अच्छा, screen. अब इसके अंदर जिस तरह मैं आपसे पहले बात कर रहा था, हेल्थ सेक्टर्स हैं, जॉब हंट किस तरीके से करनी है, लाइसेंसिंग है, एरियाज एंड लाइफ इन सऊदी अरेबिया। हेल्थ सेक्टर्स के अंदर जो कि है गवर्नमेंट सेक्टर है और इंडिपेंडेंट बॉडीज है, फिर एक प्राइवेट सेक्टर है। यहाँ पे यानी 7 डिफरेंट तरह के हेल्थ सेटअप्स चल रहे हैं। हेल्थ डायरेक्टरेट्स हैं, हेल्थ डायरेक्टरेट्स ये है मेडिकल सिटीज, ये हेल्थ डायरेक्टरेट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट किसी की बॉडीज होती हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की जो जो एक हायरार्की होती है उसको कंट्रोल कर रही होती है, जद्दा, मक्का, मदीना। इसके पाकिस्तान के अंदर इंटरव्यूज आते हैं कि जी जिस तरीके से आजकल आया हुआ मक्का डायरेक्टरेट का, मैं आपको आगे बताऊंगा कि मक्का डायरेक्टरेट की कितनी जुरिस्डिक्शन है। उसके बाद फिर आ जाता है मेडिकल सिटीज। मेडिकल सिटीज है इंडिविजुअल हॉस्पिटल इस तरह का है कि जिसके अंदर तमाम सब स्पेशलिटीज है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के डायरेक्टली अंडर नहीं है। इसे जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्सेप्ट है ना एएमआई का, ऑटोनोमस मेडिकल इंस्टीट्यूट का, कि जी ये डायरेक्टली हेल्थ मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर मिनिस्ट्री, इनका अलग बजट आता है। तो हेल्थ सिटीज आर अ लिटिल बेटर देन हेल्थ डायरेक्टरेट इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, सिस्टम्स एंड सैलरीज। फिर आ जाता है मेडिकल यूनिवर्सिटीज का। ये हेल्थ सिटीज और मेडिकल यूनिवर्सिटीज, दीज आर द ओनली टीचिंग कैडर्स, टीचिंग हॉस्पिटल्स, इनके अंदर रेजिडेंसी होती है। और मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर वही तरीकेकार होता है, सीनियर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर। हमारी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की फॉर्म बात, हमें सीनियर रजिस्ट्रार लेते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे है मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री हॉस्पिटल, जिसके अंदर नेशनल गार्ड हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल है, इनकी अपनी एक हायरार्की है। यानी इनके अंदर क्लिनिक्स भी हैं, इनके अंदर सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है। जब सऊदी पाकिस्तान के अंदर जॉब्स आती हैं कि फॉर मिलिट्री हॉस्पिटल या फिर फॉर नेशनल गार्ड हॉस्पिटल, वो आपको कहते हैं इस तरह है एज ए नेशनल गार्ड हॉस्पिटल, मगर जो वहां से होता है उसको इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि इनकी क्लिनिक्स भी हैं। और ये हो सकता है आपको एज ए जनरल सर्जन लेके जाएं और बड़े हॉस्पिटल में आप ना हो, आप एक उनके सेकेंडरी केयर सेंटर में सिर्फ रेफर करने को। फिर इंडिपेंडेंट बॉडीज है, जिस तरह हमारा है किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, और रॉयल कमीशन हॉस्पिटल है, ये इनके रॉयल फैमिली का है, ये किंग फैसल भी है इनकी रॉयल फैमिली के लिए। फिर प्राइवेट सेटअप्स आ जाते हैं जिनमें सना काम कर रही है, जो कि यानी किसी भी हर हर कंट्री के अंदर डिफरेंट होते हैं। अब इसमें जो जॉब हंट है, यानी एक तो डायरेक्ट है कि आप डायरेक्टली हॉस्पिटल को अप्लाई करें, या फिर इनडायरेक्ट है कि आप पाकिस्तान से किसी एक फर्म को जो कि है रिक्रूटर, जैसे इंटरव्यू रिक्रूटमेंट एजेंसी। रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं। डायरेक्टली टू हॉस्पिटल के अंदर इधर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस हो सकता है, आपने किसी अस्पताल में काम किया, आपके एक्वेंटेंसेस हो सकते हैं, वाया सोशल मीडिया फॉरम्स। मुझे इस सोशल मीडिया फोरम का बहुत फायदा हुआ था, और मैं इसके ऊपर भी आता हूँ। अलुमनाई है इसमें, इसका बहुत बड़ा रोल है डायरेक्ट हायरिंग के अंदर, कि जी आपकी यूनिवर्सिटी का कोई शख्स पहले से काम कर रहा हो और उसे पता हो कि जी यहाँ पे जॉब्स हैं, तो वो आपको इन्फॉर्म कर दे। मेरे जो कि है मेरे यानी जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मैंने पाकिस्तान में 1 साल रहते हुए काफी वहां पे ना फाइनेंशियली काफी डेस्परेट हो गया था, और मैंने हर अपने तरीके कार अपनाया था। इसके अंदर सोशल मीडिया में मैंने लिंक्डइन के ऊपर डिफरेंट लोगों को, हर हॉस्पिटल में मैं जाता था और उस हॉस्पिटल के अंदर जो जो मुझे नजर आता था, कोई भी पाकिस्तानी नाम, मैं उनको अप्लाई करता था कि जी इस तरीके से ये मेरी सीवी है, अगर आपके पास कोई जॉब हो। एंड लकीली लकीली माशाल्लाह 3 लोगों ने मुझे लिंक्डइन और फेसबुक के थ्रू, जो कि मुझे उससे पहले नहीं जानते थे, उन्होंने मुझे रब्ता किया कि हाँ जी हमारे पास इस तरीके से पोस्ट है, और उनमें से 2 के साथ मेरा इंटरव्यू हो भी गया था, मगर उससे पहले मेरी ये वाली जॉब आ गई थी, एंड दिस वाज क्वाइट बेटर ऑप्शन फॉर मी। इस जॉब के लिए जहां पे मैं भी काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक कंसल्टेंट से, विच वाज नॉट अ न्यूरोसर्जन,
बल्कि मेरे एक डायरेक्ट सीनियर थे फ्रॉम मियो हॉस्पिटल, वो यहाँ पे जॉब पे थे, और उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से हमारे हॉस्पिटल में एक जॉब क्रिएट हुई है, आप हॉस्पिटल में अप्लाई करें। मैंने डायरेक्ट एप्लीकेशन दी है, जो मैंने पहला तरीका लिखा हुआ है कि उसके हर हर हॉस्पिटल की वेबसाइट के ऊपर रिक्रूटमेंट का ऑप्शन होता है, कैरियर्स का ऑप्शन होता है, तो उसके अंदर पूरी हम सीवी फिल की, मैंने सीवी अप्लाई कर दी, मगर किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर एक कंसल्टेंट जिनको मैं पर्सनली जानता था, क्योंकि मैं मेरे वाले साहब भी पहले सऊदी अरब रहते थे, मैं भी सऊदी अरब रहता हूँ, तो मैंने उनसे रब्ता किया कि जी इस तरीके से कोई एक वैकेंसी है, आप देखें, और मैंने वहाँ पे अप्लाई भी किया हुआ है, अगर मैं वहाँ पे क्वालिफाई करता हूँ। तो उन्होंने यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात की, तो उन्होंने इंटरव्यू किया एंड दे सिलेक्टेड मी। तो ये डायरेक्ट हायरिंग का तरीका है। इनडायरेक्ट हायरिंग के अंदर अल नजम है, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इस ये काफी लिंक्ड है, यानी इसकी जो तमाम जो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत स्मूथ है। इन्होंने भी मुझे 2 जॉब्स ऑफर की थी, मगर वो जॉब्स इस तरह के रीजंस में थी कि मैं चूंकि सऊदी में रहता था, मुझे रीजंस का अंदाजा था, तो आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर देम। ये आई एम करंटली वर्किंग इन किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, व्हिच इज अ टीचिंग हॉस्पिटल, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, और इसके दिस इज द स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल ओवर हियर, यानी ये फ्लैगशिप है सऊदी हेल्थ सिस्टम का ना। तो और न्यूरोसर्जरी इसके अंदर क्वाइट डेवलप्ड है, और यानी इट्स एन एपिलेप्सी सेंटर, और द ओनली एपिलेप्सी सेंटर ऑफ द वेस्टर्न रीजन। तो मैं इस वजह से यहाँ पे आया था। दूसरा, इसके अलावा ओईसी, अल कुरैशी, फौजी फाउंडेशन, अमेरिकन इंटरनेशनल, इन सब की ऑनलाइन सीवीज फिल करके अगर आप रख दें, तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी जैसे ही आपकी किसी भी उसमें आएगी, दे विल कॉल यू डायरेक्टली। अच्छा अब आदिल, इसके अंदर एक क्वेश्चन मेरे जहन में है, क्योंकि बिकॉज आई कैन ड्रॉ अ बिट ऑफ एनालॉजी बिटवीन आयरिश सिस्टम या यूके सिस्टम। तो वहां पे जब लोग सर्जिकल स्पेशलिटीज में मोस्टली जब यूके या आयरलैंड में रजिस्ट्रार लेवल पे आते हैं, तो काफी ज्यादा दे आर नॉट लाइक दे आर नॉट वर्किंग इन ओआरस, मोस्टली उनका वार्ड बेस्ड वर्क होता है, और बहुत सारे जो है आपको इतने प्रोसीजर्स वगैरह नहीं मिलते, एंड यूर बिकॉज यूर इन अ हाईली स्पेशलाइज्ड sort of specialty. तो आई ऑलवेज थॉट इन आयरलैंड या यूके, पाकिस्तानी surgeons working in Pakistan, they were still able to work on their skill as opposed to people who are in UK and Ireland. I'm not, what's your opinion about Saudi and how hands-on it is from a point of view of being a surgeon, especially neurosurgeon, or specifically Kazim B, because he's working in Kuwait, so that is something relevant to surgeons. हाँ जी, इस चीज का पाकिस्तान में काफी था, ये सब यही कहते हैं कि जी जब आप सऊदी चले जाओगे तो आपका सर्जिकल स्किल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखिए काफी फर्क पड़ता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द कंसल्टेंट विद whom you are working. We have 4 consultants. With 2 consultants, we just scrub in the OR and we sit there for hours and hours. And there are 2 other consultants with whom, when we scrub in, we do almost the whole of the tumor and desk or whatever the case is. So consultant to consultant, there is no hard and fast rule ये है कि without a consultant you cannot open an OR. अब इसके अंदर भी it depends upon which system are you working in. In medical directorates, the assistant consultant, which is called as a specialist over there, he runs the OR. If he is competent enough, the consultant trusts him. He can run the OR, he can open the OR, he can do anything. In medical cities, universities, and rest of the systems, a consultant should be there in order to start an OR. The anesthesia team will not anesthetize until and unless the consultant is physically not present over there. But even his physical presence, he is not required to scrub in. If he feels that you are competent enough, you can do. I know a consultant in a medical city in Makkah, जिसके रेजिडेंट सारा ट्यूमर ऑपरेट करते हैं, जिसके जो जो मेडिकल ऑफिसर है जो उसके साथ ट्रेन हो रहा है, या फिर जो मेडिकल ऑफिसर पाकिस्तान से आया हुआ जस्ट आफ्टर एमबीबीएस, वो उसका पूरा ट्यूमर का केस ऑपरेट करता है, और वो उस पर ट्रस्ट करता है क्योंकि वो उसके साथ 10 साल से काम कर रहा है। तो कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट काफी वेरी करते हैं। अब लाइसेंसिंग का सिस्टम, ये एक मैंने एक जनरल सा फ्लो शीट इसमें बनाई हुई है। आपको यूनिवर्सिटी से अटेस्टेशन चाहिए, एचईसी से, फॉरेन ऑफिस से, डेटा फ्लो एक है, ये काफी इंपॉर्टेंट एंड टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ तक का डेटा फ्लो तक का काम आप बगैर किसी जॉब सर्टिफिकेट के कर सकते हैं, बगैर किसी जॉब ऑफर के। जब आपके पास जॉब ऑफर आएगी, फिर ये रेस्ट ऑफ द थिंग्स है। प्रो मैट्रिक के एग्जाम जो मैंने पाकिस्तान से दिया था और लोग पाकिस्तान से दे सकते हैं, उसको नॉन एलिजिबिलिटी प्रो मैट्रिक फॉर सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ साइंसेज कहते हैं। जिन्होंने सऊदी अरब आना हो, वो उसकी बेस के ऊपर एग्जाम में वहां से अपीयर हो सकते हैं, मगर उनका डेटा फ्लो तक का काम पूरा हुआ होना चाहिए। ठीक है,
तो लाइसेंस उनका तैयार होना चाहिए। अब ये एक चीज है रिगार्डिंग के क्या क्या जॉब पोजीशंस ऑफर होती है। इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन एक रेजिडेंट की पोस्ट पे अप्लाई करते हैं। जिस तरह मैंने कहा था यहाँ पे, इफ यू कम एज अ रेजिडेंट यू विल स्टे रेजिडेंट फॉर योर होल ऑफ द करियर। So if a person is visionary enough, I have to go there just to break out my financial restraints for 3 years, 4 years. I will work over there. I will earn some money and move forward for another country for post graduation. रेजिडेंट की पे वेरी करती है, जिस तरह पहले मैं बता चुका हूँ। अब जो यहाँ पे टाइम आपके पास इतना होता है कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सको, आप कुछ भी पढ़ सको। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, यहाँ के सिस्टम्स इस तरह के हैं कि आपको यहाँ से किसी भी वेस्टर्न कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में जाके ज्यादा एक इशू नहीं होगा रिगार्डिंग यूजिंग ऑफ दी गैजेटरी, यूजिंग ऑफ दी के जी स्पेशलिटीज के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना है। पाकिस्तान में तो देयर इज ओनली वन पर्सन जो कि पूरी ईआर चला रहा है और उसी ने सब कुछ करना है। यहाँ पे आपको पता चलता है कि आरटी का क्या फंक्शन है, आपको पता चलता है कि इंटेंसिविस्ट क्या करता है एंड सो ऑन, और सरनर कैसे यूज करना है। ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो कि आप कहीं भी दूसरी जगह पे जाओ तो आपको, मुझे यहाँ पे सऊदी आके काफी तकरीबन 3 माह लगे थे ये सारी चीजों को यूज होते हुए। Then immediately after post graduation, you are given a post of registrar, specialist, assistant consultant. The name varies according to the system you are in. 3 years after post graduation, you are made as a registrar or associate consultant. This is for Pakistani fellowship, which is tier 3. If you are a tier 2 fellow, this means either from Arab board or Irish, Australian. You will directly be inducted immediately after post graduation as senior registrar or associate consultant. अगर आप टायर 1 के हो, यूएसए, यूके के हो, तो डायरेक्टली आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन यू कैन वर्क एज ए कंसल्टेंट। तो जो सैलरी स्केल्स है दे वेरी अ लॉट विद ईच स्टेप, बहुत उसमें डिफरेंस होता है। तो मेरे यही होगी कि किसी भी वेस्टर्न कंट्री से करके यहाँ पे इंसान आए और आके एज ए डायरेक्टली कंसल्टेंट लगे, तो इट इज क्वाइट वर्थ इट। So from your talk I've gathered is कि जो हमारे new graduates हैं वो इसको as a jumping board लें to get into sort of like better environment or get professionally अपने career में थोड़ा progress कर सकें, and that was a really good answer to the neurosurgery. So अब हम जाएंगे डॉक्टर सना के पास। सो डॉक्टर सना, थोड़ा सा आप भी इस पे हाईलाइट डाल दें कि अंडर ग्रेजुएट्स व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि आदिल तो न्यूरोसर्जरी और उसके बाद आए हैं, तो व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दिस अंडर ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट पाथ? First of all, Assalamu alaikum, and thank you so much for having me here, Salman bhai. As mashallah, Adil has cleared all and each point by the way a consultant or a postgraduate can come over here. I will just add a few things in this because majority is the same things in the private setup as well over here in Saudi Arabia. The main points I would like to add is that when because there are many Hamdard graduates even today, I know they are mostly their parents are living in Saudi Arabia and the students are working over there. So I want to add this thing for undergraduate students that when you are completing your final year MBBS and you are preparing to have your house job over there, just start preparing for the pro-metric examination. As Adil told that there is a pro-metric examination which is done in Pakistan as well, and it is paid. Even here in Saudi Arabia, it is paid. But there is one thing which is very minute line, maybe some people know or don't, that if you give that prometric examination over here in Saudi Arabia, your employment is very open. When you're here inside the kingdom, you can just take your CV and you can go to any hospital, polyclinic, anywhere as of where you can work for a GP. Even though if you are planning for your USMLE or any other post-graduation, or back in Pakistan, you're planning for post-graduation, you can just prepare it for this exam if you have a mindset that in the following years you are going to come back to Saudi Arabia. So that is the first baseline step will be ready for you, and they give you an expectancy of 5 years, that after 5 years this exam will be expiring. So they give you a time period. जो prometric exam है, is it a general exam? Yeah, it is for specialists. Yes, no, it is. There are two types of prometric exam. One is general, जो कि आप MBBS के बाद simply general physicianship के लिए general prometric exam दे सकते हैं. अगर आपने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, लाइक आपने MCPS में ले लिया है, अब क्योंकि जब मैंने MCPS किया था इन जनरल मेडिसिन, उस वक्त MCPS होता था. अब पाकिस्तान के अंदर
MRCGP होने लगा है, जिसके अंदर MCPS को एक्सक्लूड कर दिया गया है और उसके अंदर अब ट्रेनिंग 4 इयर्स की ही कर दी है, जिससे आप लेबल हो जाते हैं मास्टर इन जर्नल प्रैक्टिशनरशिप और आपको लेबल मिलता है MRCGP का पाकिस्तान के अंदर, जो आसान बोर्ड से भी हो रहा है। लेकिन जो ये MRCGP है, इसके बाद भी आपको प्रोमेट्रिक एग्जाम देना है, you're not exempt. I would like to clear this thing, Salman bhai. Anyone who is entering Saudi Arabia for employment, they have to give prometric examination, even though they are consultant, even though they are specialist, even they are GP. They have to give prometric examination. So I'm just giving you that if your mindset is there or your parents are here like mine was, that you are going to come to Saudi Arabia, this is your mindset, you should give this exam when you are finishing your final years, because the basic exam is approximately the same we study in final year. So you don't have to go again and again for the study line and everything. और This is for the undergraduate people. ये जो एग्जाम है, इसकी क्या प्रिपरेशन होती है और क्या किस टाइप का एग्जाम है? This exam is mostly comprising of all the clinical subjects. Non-clinical इसके अंदर कुछ भी इतना नहीं आता, सारा clinical based scenario होता है. And if you do, as Adil already told, USMLE step 1-2 books, or there is one specific book for Saudi Arabia which is called Qura, which is specially designed for prometric examination. I did that book, and 100% questions were all from that, because इनका एक word bank created है इनके पास Saudi Health Foundation के अंदर, और एक Facebook page भी है. If you go and review from there, you can have a much resource on that, and you can go and revise it from there. For the second part, as Adil mashallah has cleared all the aspect for post graduation, जो FCPS की तरफ नहीं है, मैं उन स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहूंगी या उन अपने कलीग्स को गाइड करना चाहूंगी कि जिन्होंने FCPS नहीं किया है, जो MCPS करके रुक गए हैं, या जिन्होंने 4-5 साल से जनरल फिजिशियनशिप में है, या मेरे बहुत से कलीग्स ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि यार it's been 8-9 years I am working as an RMO in Pakistan, so is there any scope for me outside to have a good earning or have a good lifestyle for my family? तो उनके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि they can clear the prometric exam, they can come over here, and they should have some background for financial issues, because as Adil already told, यहाँ पैसे आपको खुद देने पड़ते हैं, और अगर आपका एम्प्लॉय, आप इतने लकी इनफ हैं कि आपका एम्प्लॉय आपके लिए पे अप कर दे, तो आपको जो है यहाँ पे रेजिडेंसी प्रोग्राम्स हैं. एक स्मॉल शॉर्ट जो मैंने किया कोर्स, लेकिन मैंने खुद पे किया, इट वाज सऊदी फेलोशिप ऑफ डायबिटीज. There are 3 centers over here, and you can come and do that. सना, ये जो डायबिटीज की फेलोशिप आपने की थी, क्योंकि आदिल बता रहे थे कि आपको तकरीबन 3000 समथिंग रियाल पर मंथ देने पड़ते हैं, तो you had to pay this amount? Yes, definitely. I paid for the whole 2 years about approximately 35 to 40,000 रियाल for this whole program. जो मुझे जो है जिसमें, लेकिन मेरे मतलब हर बंदे का अलग सेटअप होता है सलमान भाई. मेरे साथ ये था कि मेरे जो स्पॉन्सर्स थे, they were ready to give me that because I have worked for them for 3 years, so they were willing to train me. So half of was paid by my employer and half I paid. This was the main criteria, but the institution took itself 40,000 riyal for this thing. So just for an understanding, जब आप सऊदीया में थी, तो you must have been earning from a different job source to work into this place. Yes, that's what I already told you, that I cleared my MCPS and I was here working as a specialist in Suleiman Faqih Hospital, and they were giving, as a specialist, Adil already told, there is a package from 8,000 to 15,000 range, according to your level, your designation and everything. So I was earning, alhamdulillah, that part of money, and then I submitted that form to my hospital that my interest is in endocrinology and I want to do more in this. So at that initial level in 2016, I'm telling you, it was new in Saudi Arabia, and they need some batches. It started in 2015, and I was the second batch of this post graduation. So they need some people to train and to show Saudi Arabia that okay, so they took foreign students as well. And I was an employed person already over there in that setup. So they took me, and half of it was paid by my employer. The basic thing, Salman, I want to clear, in Saudi Arabia, everything works on your employment. Once you have a contract and your relationship, your employer can pay paid for your fellowship, even your post-graduation residency. Just you have to, prove yourself that you are not going to leave them, or you are not going to shift from them, as Kazim and Jazeb Bhai and all these people, all the GCC is having basically the same mindset on this thing. They're going to spend anything like on you. तो ये जो है कि बॉन्ड भी होता है आपके साथ कि जी, if you have to complete a bond of
few years, अगर वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो are you bounded in some way कि आपने उन्हें सर्व करना है after doing your fellowship? क्या है उसका? Definitely, Salman bhai, when they are paying for you and they need you, they sign a contract with you, an accreditation that once you complete this fellowship, you are not going to move to any ministry, because ministry always give you more money than private sectors. And you are not going to move, or you will stay this time of amount of period with them. And also वो आपकी जो हमारे यहाँ पे 2-3 तरह के allowances होते हैं at different levels of experience in private sector. तो वो उन allowances को भी आपको rebound कर देते हैं कि until or unless you completed the 2 years, your this amount of money will not be released or something like this. So that's another story. And if anybody needs some support on that, he can message me. I can explain them directly on this. No, I think this is very interesting area, and specifically you would be able to guide people जिन्हें इस तरह का कोई funding source, yes, especially to do a post graduation in Saudi. That is because Saudi yes, is an area which is like although it's bigger than Kuwait and Qatar and every place yes, else, लेकिन right, training opportunities जो है यहाँ पे थोड़ी different इस तरह से हैं कि आपको funding source arrange करनी है, वो आपका yes, employer funding source that you have to arrange. अच्छा, जिस टाइम ये आपको फंडिंग उन्होंने दे दी थी तो फिर you were not working in their hospital, you were gone to another place, huh? Yeah, I will also clear you this thing. I will clear you. In every residency over here in Saudi Arabia, you are linked with the training centers. Like Adil told, he's working in a university hospital. Maybe there are some doctors who are working in private sectors as well, and they are locum in those setups. So there are steps, and I have a full protocol and guidelines. You can say I can send it to anybody who wants to do this. It is showing each and every roadmap and prospectus, giving you a fees discrimination, your time, your criteria, your CMER, how much time you have to give to your employee, how much time you're going to give to the training center. Everything is written in that. If you just have that, I can also give the link in the description of this webinar after this session. Very good, very good. Thank you very much. अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, 5-10 मिनट हैं, so I will go again to each of the participants. So I'm gonna come back to Kuwait from Saudi back again. तो क्वेश्चन ये है सबके लिए कि फ्रॉम अ ट्रेनिंग प्रोस्पेक्टस आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी एक्सप्लेन कर दिया. व्हाट इज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट? Well, Kazim, coming to you, where do you see yourself in 5 years? Do you want to stay in Kuwait? What's your further future plan? And what would you recommend to people who are in a similar situation like you? Absolutely. एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो कुवैत है, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये बहुत छोटा है. तो जो न्यूरोसर्जरी के खास तौर पे मैं बताना चाहूंगा, जो सेटअप है यहाँ पे, वो एक टीचिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग काम कर रहे हैं. तो हमारे पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, जिस तरह वेस्कुलर न्यूरोसर्जरी की सब स्पेशलिटीज हैं फर्दर पर आगे, जिसमें गैमा नाइफ है, रेडियो सर्जरी है, वेस्कुलर है, इसी तरह आपकी स्कल बेस और बाकी एक अच्छा आपको एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ पे सीखने का भी, आपकी लर्निंग भी होती रहती है. दूसरा यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बाहर से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टॉप प्रोफेसर्स हैं, न्यूरोसर्जन हैं, वो आते हैं. तो वो आपके साथ काम करते हैं, आपको मौका मिलता है उनके साथ उनसे सीखने का, उनके साथ काम करने का. दूसरी बात एक मैं बताऊंगा कि जैसे डॉक्टर आदिल ने बताया है कि ये वो जगह हैं जहाँ पे बैठ के आप अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सेटल हो जाती है, तो आप पढ़ने का भी आपको चांस मिल जाता है. तो यू कैन इम्प्रूव योर क्वालिफिकेशंस. आप अगर अपनी क्वालिफिकेशंस इम्प्रूव कर लेते हैं तो ना आपको फिर गल्फ के अंदर आप कंसल्टेंट की पोस्ट पे जंप कर सकते हैं. अब कुवैत का एक्सपीरियंस जो है ये मुझे बेनिफिट करेगा अगर मैंने किसी और गल्फ कंट्री में जाना है. यूएई में मुझे एक बेहतर जॉब मिलेगी, कतर में जॉब मिल सकती है, सऊदीया में मैं आना चाहूँ तो यूएई का जो कुवैत का एक्सपीरियंस है ये ऑब्वियसली एक मुझे एज देगा. और इसके साथ अब वही वाली बात है कि फर्दर क्या है, फर्दर ये है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप FRCS कर सकते हैं, ठीक है. और अगर आप FRCS कर लेते हैं उसके बाद आपके लिए यूके भी ओपन हो जाता है और गल्फ में आपकी पोस्ट चेंज हो जाती है. आप एक बहुत ही अच्छे पे स्केल पे चले जाते हैं और आप अपनी जॉब स्विच कर लें. आप उसी जगह पे काम ना करें, जैसे डॉक्टर आदिल कहते हैं कि जहाँ पे आप आते हैं वहीं पे रहते हैं. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने अच्छी बात ये है कि प्रमोशन होती है आपकी.
अगर आपने यहाँ पे आए हैं, आपने अपनी डिग्री की है और साथ आप FRCS भी कर लेते हैं, ये इस चीज को रिकग्नाइज करते हैं और आफ्टर 3 years दे प्रमोट यू टू स्पेशलिस्ट। जो यहाँ पे स्पेशलिस्ट है वो सऊदीया में असिस्टेंट कंसल्टेंट होता है बेसिकली। तो यहाँ पे आप स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। जो हमारे डॉक्टर्स पाकिस्तान से स्पेशलिस्ट आए हैं, जिनको मैं जानता हूँ हमदर्द के हैं, आपको पता भी होगा, डॉक्टर यूरोलॉजी में आए हैं हमारे साथ, डॉक्टर अदनान, वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं और उनको उन्होंने SRs बकायदा दिए हैं, उनके साथ अटैच किए हैं। वो अपनी लिस्ट खुद रन करते हैं प्रॉपर, उनके साथ एक प्रॉपर उनको OR थिएटर दिया गया है जिसमें उनकी प्रॉपर अपनी लिस्ट होती है। तो ही इज डूइंग हिज ओन केसेस, हिज OPD, हिज केसेस। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको हैंड्स ऑन का वो, अब ही इज वर्किंग सॉर्ट ऑफ कंसल्टेंट। तो अब वो 3 साल के बाद फर्दर प्रमोट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसी तरह अपॉर्चुनिटीज हैं ये सारी कि आप यू कैन इम्प्रूव योर डिग्री, देन फाइनली इट्स ओपन फॉर यू, गल्फ एंड UK। So, question, Kuwait, do you want to stay over there for next 5 years? What do you think? I think it's a good place to stay here for like 2 to 3 years, and if after that, if you improve your qualification, you can either come back, you can move to any other Gulf country with a Right. better post, and either you can move ahead to UK. सही सही That's सही। और FRCS पे आप लोग कह रहे थे, तो थोड़ा सा इस पे, जैसे क्योंकि आप लोगों का तो MRCS पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद जी जी। आपको मेरे ख्याल में वो चाहिए होती होंगी कुछ रिकमेंडेशंस फ्रॉम डिफरेंट फेलोज, राइट? तो वो आपको फेलोज वहीं पे मिल जाते हैं, उसी सेंटर के अंदर मिल जाते हैं, who recommend you for FRCS, या what's the path? क्योंकि अगर आप कोई नहीं कह रहे हो तो जी, what? मैं आपको यही बता देता हूँ कि हमारे जो हेड हैं वो भी यहाँ पे FRCS भी काम कर रहे हैं। तो सही। ऑलरेडी जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं तो वो रिकमेंडेशन इजीली ले सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। और ठीक। अगर आपने शॉर्टकट चाहिए, आपको बिल्कुल यू वांट अ शॉर्टकट टू मूव फ्रॉम दिस प्लेस, यू डोंट वांट टू स्टे हियर इन कुवैत और एनी गल्फ कंट्री, Right. ये सर्जन्स के लिए है। सर्जन्स के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ MRCS इज द बेस्ट वे टू मूव अहेड टू UK। MRCS पार्ट A पार्ट B आप कर लें, उसके बाद आपको GMC मिल जाती है और GMC पे आप इजीली आप एक अच्छी जॉब UK में ले सकते हैं आराम से। Thank क्योंकि you. FRCS इज द कंपैरेटिवली डिफिकल्ट एग्जाम और FRCS एक इंटरनेशनल होता है, एक उनका जो इनसाइड एग्जाम है, यहाँ से बैठ के आप इंटरनेशनली दे सकते हैं, ठीक है। उसको फिर भी पास करना थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, लेकिन MRCS इज कंपैरेटिवली इजी एंड द जॉब अपॉर्चुनिटी इज 100%। यू नो बेटर, UK में आप बैठे हैं, आप बताएंगे। नहीं, thank you very much, Qasim. Adil, last few points we have 3 minutes more because we started late. So same question, over to you. हाँ, यहाँ पे मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे ज्यादा अरसा रहा जा सके इन टर्म्स ऑफ, जब आपको वो, जैसे जाजिम ने भी कहा, काजिम भी कहता है कि जब वो नेशनलिटी नहीं आपको देते, जब वो आपको नेशनलाइज नहीं करते, तो इवेंचुअली एक 65 साल 70 साल के शख्स वापस जाके रिटायर होकर पाकिस्तान में स्क्रैच से तो नहीं शुरू करेगा ना। तो मैंने तो यहाँ पे यही देखा है कि ज्यादातर जो लोग हैं इन देयर 50s दे ट्रेंड टू मूव इधर बैक टू पाकिस्तान, या फिर जिन्होंने UK या USA जाना होता है वो इससे पहले चले जाते हैं। There is I have never seen anyone retiring from Saudi Arabia. Almost never seen anyone retiring from Saudi Arabia. Adil, इसी के ऊपर because you did mention very specifically about this epilepsy specific center where you're working, तो मैं वैसे ही just was thinking, क्योंकि Ireland के अंदर तो there is only one center in whole Ireland which is doing those complex epilepsy surgeries and neurosurgeries, like, involved. So I think you are working at a very logistically supported area, and especially जब आप UK की भी बात करते हो तो UK में भी comprehensive neurosurgery centers are very very limited. मतलब there might be some centers, but if you're fully equipped over there and doing those complex epilepsy cases, और आपके पास अब एक surgeries हो रही हैं या वो interventional, so I think that is a very telltale sign that you are working at a very good center. देखिए, सेंटर सेटअप और एनवायरनमेंट तो यहाँ का बहुत अच्छा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पे आपको इतना करते हैं कि आप
जाते जाते भी सोचते हो कि एंड ऑफ जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स हैं वो आपको इतने दे रहे होते हैं कि आप सोचते हो कि मैं 5 साल और लगा लूं तो मेरे एंड ऑफ सर्विस इससे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, कि आप बहुत ज्यादा सोचते हो। मगर जब आपने बात ये सोचनी है ना कि आफ्टर रिटायरमेंट में क्या करूंगा, आफ्टर 30 years में क्या करूंगा, हम्म। तो यहाँ पे मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। या फिर इसको हम स्लो पॉइजनिंग कहते हैं बेसिकली। टू माय नेक्स्ट जनरेशन, ये in order to excel you have to exceed from your comfort zone। ये आपको comfort zone में from the resident up till the consultant, ये आपको comfort zone में रखने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। सही सही। तो इस comfort zone से निकलेंगे तो हमें excel करेंगे, मेरे ये पर्सनल थिंग। Very good. Sana, last few minutes, 1-2 minutes are left, so please kindly, same question over to you. Salman bhai, I would like to say on this that Adil, completely I agree with him, and that's the only thing I have seen. Even in my setup, there were Dr. Tanveer Razi. If you know, he's now working as a metabolic surgeon. He was here in Dr. Sulaiman Fakhri Hospital. I'm just giving an example to just elaborate the thing what Adil already described. He completed his 8 years of service over here. He learned obesity, metabolic surgeries from Dr. Patrick Anderson, who is right here. He's an Egyptian, and he's working as a consultant of that department here in Sulaiman Fakhri. So what the basic criteria over here for the women's and men's working in Saudi Arabia is that they gain a lot of experience. They save a lot of money even for their families. And then what's the second option? To move either to another country like US, Canada, Australia, because easy immigration and easy citizenship then is allowed for these people who are having resident Akama of Saudi Arabia. You know, the criteria of eligibility increases. Or either if I'm going to explain for my personal side for retirement and things, that is the only reason I also opt for non-clinical part. As a clinical research physician and as a medical affairs consultant in pharmaceutical industry, that even after Sulaiman Fakhri is retiring me at 65, I have another option as a vast field of pharmaceutical who can opt me on very big top management post for medical affairs directors and everything that is sidewise I'm working on. So this is the thing in Saudi Arabia, because they don't give you citizenship, even though now they have open opportunities for citizenship. It is very rare that they will be providing for doctors like us. There are very extensive criteria on that citizenship, you know. And what I say is that when you come here, save a good amount of money, learn for your post-graduation for other parts of the world, either move or go back to your country with all those experience, and think you will having a good life. Very good. Thank you. So that is a very good sort of like career path and plan, and I wish you all the best, and I wish you कि आप सब लोग अपने अपने जो भी relative jurisdictions हैं उसमें you shine bright. और इसी नोट पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे एक जो पार्टिसिपेंट्स थे डॉक्टर हमाद, वो नहीं आ सके, सो दैट्स व्हाई हम उनको नेक्स्ट कभी किसी और प्लेटफॉर्म पे दावत देंगे. और अली भाई, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स प्लीज, अगर यू हैव सम. No, thank you very much. There's not much for me to add. Thank you, Sana, Adil, Kazim, Jazib, or Hamad, even though he couldn't be here, but for taking out so much time. आप लोगों ने जो बातें की बहुत insightful हैं. I mean, I've been doing this a long time, and I don't know any of these things. And most important thing is what happens after this. What happens after this is that what you've done is not really answer questions. What you've done is create even more questions. और जो लोग इन career paths में interested हैं, I hope कि वो आपको contact करेंगे, and you know, from 1 they'll go to 2, 10, 50. Adil said, step out of your comfort zones. Nothing grows in the comfort zone. Very good. So on that note, Ali bhai, we should wrap. ठीक है. Thank you very much, everyone. Thank you, Kazim. Thank you, Sana. Thank you, Adil. Thank you, Jazib. Thank you so much for having me. Thank you. Take care, guys. Allah Hafiz. हम इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि जितनी जल्द हो सके इसको शेयर करने की कोशिश करेंगे. Thank you. And if you want my WhatsApp number, Salman bhai, you can drop it in the description. Anyone who wants to have a talk, no problem. I'm always The there. talk would be shared on Planet Hamdard. तो अगर आप खुद से देना चाहो तो you can, Okay. you know, write Sure, it sure. under the thread, because I Sure, don't sure, I do that.
Okay, Allah Hafiz, Thank you. guys. Take care. Happy Allah New Year. Hafiz. Allah Hafiz.